everybody, I'm Devanshu Srivastav and I welcome you all back to my YouTube channel. So आज की वीडियो में we are going to discuss about the best way to attempt your mock/NEET 2022 paper, which can actually give you a lot of success when you apply these techniques. So we know कि कितना भी अच्छा आप तैयारी कर लो, no matter how much you study, it always comes to an end on the examination hall on how you attempt the paper, right? So this particular part has become very very crucial. We are going to discuss basically 5 pointers जहाँ पे अगर आप improve कर गए तो you can really turn your way around in your paper. So the point number 1 is that paper in one go. ये वाला जो चीज़ है paper in one go, हम में से कई लोगों की हैबिट होती है। ये मेरी भी ये हैबिट थी कि मैं लाइक स्टार्ट करती थी फ्रॉम बायोलॉजी, देन आई यूज्ड टू गो टू केमिस्ट्री, देन आई यूज्ड टू डू फिजिक्स एंड देन आई यूज्ड टू डू OMR। ऐसे करके मैं एक बार में पेपर कर लेती थी, बट दिस वॉज माई हैबिट द ईयर वेयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। दैट इज़ 490 मार्क्स आए थे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ जो है, बाकी कोई अपोज करे ना करे, आई एम द बिगेस्ट अपोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब आप वन गो में पेपर देते हो, कई बार ऐसा होता है कि आपसे फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, या बीच में ही ऐसा हो गया कि आपके 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं हुए, यू लूज योर कॉन्फिडेंस अ लॉट एंड दैट इफेक्ट्स योर पेपर इफ यू हैव जस्ट वन गो टू इट. What you should instead do is divide your paper. How do you divide your paper? Divide your paper like तुम्हें ये पता है कि तुम्हें कौन से chapters आते हैं, right? So always do the easy questions first, because what happens जब ये कर लेते हो तुम्हारा confidence boost हो जाता है and you save time here. Easy questions में बैठ के बस सोचते मत रहना, because what we नीट वाले स्टूडेंट्स डू इज हम इजी क्वेश्चन देखते हैं, फिर हमें लगता है इतना इजी आया है तो फिर ये तो पक्का नहीं होगा, एंड वी अप्लाई सम डिफरेंट लॉजिक एंड स्टफ टू इट एंड हम उसको पूरी तरह से नेगेटिव मार्किंग में कन्वर्ट करके आ जाते हैं. डू नॉट डू दिस. ईजी क्वेश्चंस पहले करो, ज़्यादा उनमें दिमाग ना लगाओ, जितना लगाना है उतना ही लगाओ, and then move to the harder part. Always compartmentalize your paper and do it in at least 2 goes. कि तुम एक बार सेकेंड टाइम जब क्वेश्चन देख रहे होगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुमने पहले जो किए उन पर भी तुम्हारी नज़र जाएगी, सो इट मेक्स थिंग्स बेटर. दैट इज़ वाई ऑलवेज डू इट इन एटलीस्ट 2 गोज. एक गो में तो कभी पेपर मत करना. दैट इज़ माई ऑनेस्ट एडवाइस टू यू. And there was something else that I wanted to talk to you guys about. जैसे कि we are talking so much about the test series and tests and everything, all the mock test areas. So right now, all India level mock test is going on. That is the NEET UG Mega Combat Test on Unacademy, where you can practice for your NEET UG examination and also win scholarships from a pool of 5 crore rupees. Rank 1, 2 and 3 will get 100% scholarship on all the Unacademy plans. This is the last stroke of your NEET UG preparation, so I would advise, an honest advice actually, to give these tests, because these are some great questions which have been curated by the greatest of educators in India for NEET UG, and there are just 28 questions from all the 3 subjects, which are physics, chemistry and biology, and the test is only of 45 minutes, so it's not very time consuming, but it gives you a great pool of questions to practice from. Enroll for the test for free using my code, which is Devanshi10, and also the test is happening on April 17, which is Sunday, and the test is going to start from 11 a.m. So you can just sit for the test at 11 a.m. and get it done with by 12. You can also revise for your NEET UG using the Unacademy Masters previous year questions. You can take 15 years topic-wise tests. You can test your level of preparation, also get an all India rank. This is something which is a must do for every aspirant. So make sure you do it. And for all the Unacademy Plus subscriptions, you can get an extra 10% discount using my code, which is Devanshi10. So do not forget to use it. Second thing is this 50-50. What is 50-50? This particular 50 is the amount of time or the years that you've put into your NEET preparation. And this 50 is those 3 hours of your NEET 2022 examination. ये 50% पार्ट ये होता है एंड ये 50% पार्ट सिर्फ उन 3 घंटों का होता है. So that is why I'm saying it is very important. You have to maintain your peace, your calm in the examination hall, and वो तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी एक अच्छे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की, जो आपका पेपर संभाले. इवन दो पेपर कम स्टफ, इवन दो आपको टाइम कम पड़ जाए, जो कि इस साल आई डोंट थिंक पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू हैव एन एक्स्ट्रा 20 मिनट्स. हमारे टाइम पे 20 क्वेश्चंस बढ़ गए थे, लेकिन हमें टाइम उतना ही मिला था. सो प्लीज़
कंसिडर दिस, तुम्हें टाइम भी एक्स्ट्रा मिला है लेकिन कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा इस वजह से. सो जो भी चीज़ें हैं, इफ़ यू हैव अ गुड attempting strategy, you can always make things better. That is why it is very important to have one. The next thing is to find your thing. What is finding a thing? Like बहुत एक general criteria ये है कि people start from biology, then they go to chemistry, then they go to physics. इसमें general notion ये होता है, bio is an easy topic. When you start with it, what happens कि आपको एक confidence आ जाता है कि मुझसे ये paper solve हो जाएगा, and then आपकी chemistry और physics अच्छी हो जाती है. It does not mean कि this is the only way. Talking about myself, मैंने ये वे नहीं यूज़ किया था. What my way was, I started with physics, ठीक है, बिकॉज मेरा फिजिक्स का पेपर छूट जाता था अगर मैं इस तरीके से करती थी. लास्ट में अगर यू हैव 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स एंड यू हैव 20 मिनट्स एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, तुम्हें खुद पता है कि उन कौन से सब्जेक्ट में तुम बेटर परफॉर्म कर सकते हो. इसलिए आई ऑलवेज स्टार्टेड विद फिजिक्स. आई डिड फिजिक्स, देन इतना कैलकुलेशन, इतना थिंकिंग में ऑब्वियसली थक जाते हैं. Then I went to biology. Biology was like my rest period in my paper कि मुझे उसमें सोचना नहीं है, मुझे जो याद है मुझे वो करना है बस. Then after that I went to chemistry. So this is something very very odd. ये कोई नहीं करता है, कोई नहीं करता है यार. ये मैंने किसी को नहीं सुना करते हुए, मैं करती हूँ बस. तो ऑलवेज फाइंड योर ओन थिंग, कौन सी चीज़ तुम्हें सूट करिए. तो अपनी खुद की पैटर्न ढूंढो. अभी भी 3 months यू हैव लेफ्ट. एक्सपेरिमेंट कि कौन सा पैटर्न मुझे ज़्यादा अच्छे से सूट कर रहा है. एंड ऐसा नहीं कि आज एक पेपर इस पैटर्न से दिया, कल इस पैटर्न से दिया, तीसरा दूसरे, ऐसे नहीं. ये पैटर्न को एटलीस्ट तुम्हें 3-4 बार एक्सप्लोर करना है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे पेपर ही ऐसा हो कि तुम्हें ये एक पेपर तुमने दिया, ये सूट कर गया, और दूसरा पेपर थोड़ा डिफरेंट बन गया, तो यही पैटर्न तुम्हें सूट नहीं करेगा. दैट इज वाई ऑलवेज यूज वन पैटर्न फॉर एटलीस्ट 3-4 टेस्ट एंड देन विल कम टू नो विच इज बेस्ट फॉर यू. द नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. नाउ सेक्शन ए में तुम्हें पता है 35 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको सारे करने होते हैं, राइट. अब इनमें तुम छोड़ सकते हो ऑब्वियसली, बट यू हैव टू डू देम ऑल. एंड सेक्शन बी में यू हैव 15 क्वेश्चंस जिसमें से तुम्हें 10 करने होते हैं. दिस इज ट्रू फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी, चारों ही चीज़ों में, राइट. तो जहाँ पे तुम्हें सोचना है कि मैं कौन सा करूँ कौन सा नहीं, सेक्शन बी, उसको बाद में करो, सोचो बाद में. एंड पहले तुम्हें वो चीज़ें करनी है जो तुम्हारे रिफ्लेक्स में होंगी. आफ्टर दैट व्हेन यू कम टू सेक्शन बी, हाउ यू सिलेक्ट अ क्वेश्चन कि कौन से 10 क्वेश्चन मुझे करने हैं सेक्शन बी में, इज ऑलवेज गो टू अ थियोरेटिकल क्वेश्चन. रीड NCERT, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. वाई? बिकॉज even talking about physics or chemistry, if you do 5 numerical based questions and you do 5 theoretical questions, तुम्हें पता है तुम्हारा कहाँ पे टाइम बचने वाला है. यहाँ पे ऑब्वियसली अगर तुम्हें NCERT तुमने पढ़ी होगी, तुम्हें वो स्टेटमेंट पता होगी, तो तुम एक हार्डली 10 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन कर लोगे. बट ये कितना भी इजी क्वेश्चन होगा, इसमें तुम्हें 30 सेकेंड्स तो लगने ही लगने हैं. तो वो 20 सेकेंड्स टाइम यहाँ पे सेव हो जाता है. इसलिए NCERT रीड करना स्टार्ट करो, थ्योरी प्रिपेयर करो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी. एंड सेक्शन बी में ऑलवेज गो फॉर थियोरेटिकल क्वेश्चंस. एंड जितने कम हो सके उतने न्यूमेरिकल्स तुम करने की कोशिश करो टू सेव योर टाइम, बिकॉज टाइम इज समथिंग विच बॉदर्स अ लॉट इन योर नीट एग्जामिनेशन. नेक्स्ट थिंग इज OMR फिलिंग. दिस इज द लास्ट थिंग. अब इसमें भी कई लोग के अलग नोशंस होते हैं. जैसे कई लोग क्या करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तुरंत जाके OMR फिल कर दी, ये एक तरीका होता है. फिर सेकंड किया, फिर OMR, फिर थर्ड. फिर मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करवाता है. व्हाट यू कैन इंस्टेड डू इज तुम 5 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड देन 5 बबल्स करो, ये कर सकते हो. या फिर तुम सेक्शन ए पूरा सॉल्व कर लो फिजिक्स का, फिर उसके बाद फिजिक्स के सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर केमिस्ट्री में जाओ, क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लो, फिर केमिस्ट्री वाला OMR फिल कर लो. ऐसे कर सकते हो. या फिर माय मेथड वाज आई यूज्ड टू डू द होल पेपर, पूरा 180 क्वेश्चंस करने के बाद आधे घंटे आई यूज्ड टू सेव. लेकिन ये कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर यू हैव 30 मिनट्स एटलीस्ट एट द लास्ट, क्योंकि 30 मिनट्स नहीं होगे तुम पैनिक कर जाओगे, सब बेकार करके आओगे. सो अगर तुम्हें ये अब करना है कि 180 क्वेश्चंस करने के बाद यू हैव टू जंप एट OMR फिलिंग, ऑलवेज गो फॉर दिस पर्टिकुलर. इतना टाइम होना चाहिए तुम्हारे पास, 30 मिनट्स लो एंड देन एक साथ फिल कर दो. दैट इज ऑल्सो अ गुड वे. Depends on you. You have to find your thing here also. So I hope this video helped you all, because अब क्योंकि ऐसा टाइम आ चुका है यार कि you should start your mock test. Even अगर तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं है, mock test दे के उसको एक जो रिवर्स इंजीनियरिंग का मैकेनिज्म होता है कि तुम कोई चीज़
पढ़ रहे हो तुमसे नहीं हो रही, उसका सोल्यूशन देके वो चीज़ समझ लो, ऐसे करके पढ़ाई करो. बट यू हैव टू डू इट नाउ बिकॉज इट्स टू लेट. एंड इफ़ यू डोंट डू नाउ तो 2-3 महीने, 1 आध महीने बाद मुझसे आके बोलना भी मत कि कैन वी डू इट इन 1 month, कैन वी डू इट इन 2 months. यू कांट, यू जस्ट कांट. अभी तो फिर भी होप है, कम है बट यू कैन स्टिल डू इट. So all the best to everybody. Use these methods. Develop your own methods. सबके लिए सब सूट नहीं करता है, किसी के लिए अलग टेक्निक, किसी के लिए अलग टेक्निक. But you have to work on yourself and find your thing. And that is the best way that you can tackle NEET and land in a good government college. मैं आई हूँ, मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं. Being in a college is very very fun. That I can assure you. So take care, keep studying, and do not forget to hit that subscribe button.